ابھی راستے میں بھی میں نے بہت سارے بورڈز اور کٹ آؤٹس دیکھے. ابھی چند دن میں سال ختم ہوگا، سال شروع ہوگا، ہے نہیں؟ ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ ایک ہفتہ شاید باقی ہے. میں تو کبھی توجہ بھی نہیں کرتا، میری نظر جاتی تک نہیں. الحمدللہ ابھی سال ختم ہو رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے. ابھی سے لوگ کپڑے نئے نئے سلا رہے ہیں. کیوں؟ 1 جنوری کو پہننے اور پہنانے کے لیے. رمضان کی عید میں بیوی کو جوڑے نہیں سلائے، بقرعید میں بیوی کو جوڑے نہیں سلائے، شب برات اور شب قدر میں کپڑے نہیں سلائے، لیکن 1 جنوری کو کپڑے سلا رہے ہیں. جیسے کپڑے کے ٹیلر والے رمضان میں، عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں بزی رہتے ہیں، 1 جنوری کو بھی بزی رہتے ہیں. جنوری کی پہلی تاریخ کو بھی محمد رسول اللہ کے غلام کو کیا تعلق ہے؟ تعلق؟ دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سال کی ابتدا، سال کی انتہا کا تصور نہیں تھا. عربی مہینوں میں سال کی ابتدا، سال کی انتہا کا فیصلہ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق نے کیا. اور اس زمانے میں انگریزی مہینوں کا ان لوگوں کے نزدیک تصور بھی نہیں تھا. لیکن ہم مسلمان، لا حول ولا قوت الا باللہ، میری باتوں سے غصہ اور ناراض نہ ہو. حقیقت کو جب تک سامنے پیش نہیں کیا جائے گا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا. ہم اتنے بے غیرت، بے ضمیر ہو گئے ہم لوگ کہ ہر دوسروں کا طریقہ ہم اپناتے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب والے اتنے غیرت مند والے ہیں، اتنے ضمیر والے ہیں، کبھی مسلمانوں کا طریقہ وہ نہیں اپناتے، لیکن ہم دوسروں کا طریقہ اپناتے ہیں. جنوری کی پہلی تاریخ کو ہیپی نیو ایئر کہنا، ہیپی نیو ایئر کا میسج پہنچانا، جنوری کی پہلی تاریخ کو بریگیڈ روڈ، ایم جی روڈ کو جانا، جنوری کی پہلی تاریخ اور اس رات کو شراب کو حلال سمجھنا، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرنا، جنوری کی پہلی تاریخ کو نئے کپڑے پہننا، جنوری کی پہلی تاریخ کو گھر کے اندر بریانی پکانا، جنوری کی پہلی تاریخ کو بچوں کو نئے کپڑے پہنانا، جنوری کی پہلی تاریخ کو اپنے دکانوں کو بند کرنا. یہ سب نبی کے دشمنوں کا کام ہے، نبی کے غلاموں کا کام نہیں. اسکول ایک مجبوری ہے. ہم ہو کر ہمارے بچوں سے چھٹی نہیں لیے، گورنمنٹ نے چھٹی الاٹ کی، اس لیے ہمارے بچے اس دن گھر کے اندر ہیں تو ہے فبیہا. لیکن دکان گورنمنٹ کا قانون نہیں ہے، عدالت کا قانون نہیں ہے. کوئی مسلمان جنوری کی پہلی تاریخ کو، یاد رکھو اگر آپ اونر ہیں اپنے نوکر کو جنوری کی پہلی تاریخ کو ہرگز چھٹی نہ دو. آپ اونر ہیں، جنوری کی پہلی تاریخ کو ہرگز اپنا دکان بند نہ کرو. کسی سے جنوری کی پہلی تاریخ کی مبارکبادی بھی نہ لو اور کسی کو جنوری کی پہلی تاریخ کو مبارکباد بھی پیش نہ کرو. کٹ آؤٹ میں فوٹو نہ لگاؤ، تصویریں نہ لگاؤ. غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خالق کو ناراض نہ کرو، غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے ہمارے مالک کو ناراض نہ کرو، غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے ہمارے رازق کو ناراض نہ کرو، غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کرو جو نبی رات رات امت کے لیے روتا تھا. اس نبی کو ناراض نہ کرو جو پیٹ میں پتھر باندھتا تھا. اس نبی کو ناراض نہ کرو جو اپنے کپڑے پر امت کے لیے پیون لگاتا تھا. اس نبی کو ناراض نہ کرو جو امت کے لیے میدان احد میں اپنے دندان کو شہید کیا تھا. اس نبی کو ناراض نہ کرو جو میدان احد میں ٹھوکر کھا کر گرتا ہے، پیشانی سے خون کا فوارہ نکل جاتا ہے. تم کو عیسائیوں سے محبت ہے یا محمد رسول اللہ سے محبت ہے؟ اگر خطرہ برابر بھی ایمان ہے، مجھے امید ہے ایک عاشق رسول کا جواب یہی آئے گا کہ ہم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے. جب اللہ کے رسول سے محبت ہے، عمل بھی وہی کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہو، عمل عیسائیوں کا کرتے ہو. دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہو لیکن عمل یہودیوں کا کرتے ہو. دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہو، عمل غیر مسلموں کا کرتے ہو. دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہو، عمل قرآن کے دشمنوں کا کرتے ہو، کعبہ کے دشمنوں کا کرتے ہو، گنبد خضرا کے دشمنوں کا کرتے ہو، صحابہ کے دشمنوں کا کرتے ہو، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کے لٹوروں کا کرتے ہو، شرم اور حیا کے تباہ کرنے والوں کا کرتے ہو. کچھ تو خدا را، اے اللہ کے نیک بندو، ایمان پیدا کرو اور احساس پیدا کرو. یہ تمہارے دعوے تمہارے دستر میں کامیاب نہیں ہوتے، تمہارے بستر میں کامیاب نہیں ہوتے. کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو محبت کا دعویٰ بیوی سے کرتا ہے لیکن اپنے جذبات جا کر ایک فاحشہ عورت کے ساتھ پورے کرتا ہے، کیا اس کا دعویٰ قبول ہے؟ میں یہ موٹی اور باریک ضمیروں کو جھنجھوڑنے والے مثالیں اس لیے پیش کرتا ہوں، ایسے ہی مثالیں
छोटे मुसलमान के दिमाग के अंदर उतरते हैं। मैं तहजीब की मिसालें दूं, अखलाक की मिसालें दूं, प्यार की मिसालें दूं, मुसलमान की खोपड़ी में उतरते नहीं है। फिर मेरी तमसील को सुन लीजिए, मेरे मिसाल को सुन लीजिए। बीवी से रिश्ता आपका हो गया, बीवी से निकाह आपका हो गया, बीवी तुम्हारी हो गई, तुम बीवी के हो गए, बीवी से मोहब्बत का दावा करते हो, लेकिन अपने जिस्म का सौदा किसी और औरत के साथ पूरा करते हो, तो उस शौहर को उस खानदान में रखने की इजाजत है? उस शौहर को बावफा का खिताब दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। अरे तेरा रिश्ता तो इसके साथ हुआ है, लेकिन तू अमल उसका करता है। तेरा रिश्ता इसके साथ हुआ है, तू ख्वाहिश उसकी पूरी करता है। तेरा रिश्ता इसके साथ हुआ है, 10 रुपए कर्ज के लिए नफके के तौर पर देता नहीं है, लेकिन ख्वाहिश पूरी करने के लिए हजारों रुपए उस पर निछावर कर रहा है। जैसे बीवी को गुस्सा आता है, बीवी के बाप को गुस्सा आता है, बीवी की माँ को गुस्सा आता है, बीवी के रोजगार भाइयों को गुस्सा आता है, रब्बे काबा की कसम मेरे रब को भी गुस्सा आता है। और अपने बंदों से कहते हैं, अरे झूठे, अरे मक्कार, अरे फरेबी, तू दावा मेरे नबी की मोहब्बत का करता है और नकल ईसाइयों का करता है। अल्लाह भी कहता है, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज, दावा मेरी मोहब्बत, नबी की मोहब्बत का करता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कहा है, मैं किसी मसलक को अटाक नहीं कर रहा हूं, आपको भी जमा कर रहा हूं, आपको भी शामिल कर रहा हूं, हर अच्छे बड़े को शामिल कर रहा हूं। मस्जिद के जिम्मेदारों से मेरा किताब है, मदरसों के जिम्मेदारों से मेरा किताब है, मुस्लिम रहबर और रहनुमाओं से मेरा डंके की चोट में किताब है। तुम्हारे से अगर मैं सवाल करूं, तुम्हारा रब कौन? अल्लाह। तुम्हारे नबी कौन? रसूलुल्लाह। तुम्हारी किताब कौन सी? कुरान मजीद। नबी के सहाबा से मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। गौस से प्यार है? हाँ प्यार है। अबू हनीफा से प्यार है? हाँ प्यार है। मुइनुद्दीन से प्यार है? हाँ प्यार है। जब दावत तुम इन लोगों से करते हो, तो अमल गैरों का क्यों करते हो? अमल गैरों का क्यों करते हो? तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी से फोनों में मैसेज जारी हो जाते हैं, देखिए हमारे मिनिस्टरों के फोटोस, कौन सा एमएलए जो अपने ईमान की हिफाजत कर न सके, वो उम्मत के जान और माल की हिफाजत कहां करेंगे? गुलाब के फूल बांटते, अभी वो कहीं काढ़ा बांटते। अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखो। स्कूल में पढ़ने वाले हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे इन रूहानी बीमारियों में मुब्तला। सुबह ही बेटे से, बाप से पहले बेटा उठ जाता, बेटी उठ जाती। माँ बाप का कमरा अलग, बच्चों का कमरा अलग होना चाहिए, अच्छी बात है। सुबह ही स्कूल छुट्टी रहे तो बच्चे जल्दी उठते हैं, स्कूल रहे तो दिन बच्चे लेट से उठते हैं। ये बच्चों की शरारत है। हफ्ते को लेट से उठ रही, जुम्मे को लेट से उठ रही, जुमेरात को लेट से उठ रही, पानी डालो, उठो, उठ गए, उठ रहे, मारते हैं, क्या की करते हो। इतवार को उठाए बगैर उठ जाते, ठीक है, तो खुशी में नींद नहीं आती उनको। तो बच्चे, हमने भी छुट्टी का तो बहुत खुशी, बचपन में सोचते से कई को हमने इतना जबरदस्ती पढ़ा रही बोलकर, अब समझ में आ रही है उन्होंने इतनी जबरदस्ती से पढ़ाने से हम यहाँ बैठे हैं, समझ में आई बात है। लेकिन स्कूल को छुट्टी का तो बच्चों को बड़ी खुशी, इसीलिए सही वाकया है, पंडल वाकया नहीं, लतीफा भी नहीं है, सही वाकया। किसी जमाने का एक बहुत बड़ा चांसलर, इंग्लिश में माहिर आदमी, उन्हें एक मुल्क को गया, वहां की स्कूल को गया, बच्चों से सवालात करने लगा। एक छोटे से बच्चे से पूछा, अमेरिका का सदर, वो स्कूल को गया, पूछा कि बेटे अगर आइंदा चलकर तुम अमेरिका के सदर बन जाओगे तो तुम क्या करोगे? तो बच्चा बोला, मेरा पहला काम क्या रहेगा, वीकली एक दिन स्कूल रखूंगा, 6 दिन छुट्टी रखूंगा। वीकली एक दिन, मतलब पूरे दिन छुट्टी रखूंगा। सुबह ही उठ जाते बच्चे, स्कूल छुट्टी है, दरवाजा खटखटाते, मम्मी का पापा के रूम का दरवाजा खटखटाते, टक 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 टक, कौन? पापा, हैप्पी न्यू ईयर। अंदर से बाप बोलता, वेरी वेरी थैंक्स माय डैड। ये जुमला बच्चा क्यों बोला? इसलिए कि बच्चे को मालूम है कि मेरा बाप भी नबी के साथ बेवफाई कर रहा है। अगर बच्चे को पता चलता कि मेरा बाप नबी का बावफा है, मेरा बाप आशिक़े रसूल है, मेरा बाप दावे पर मुकम्मल उतर कर आता है, मेरे बाप को मैं गाली दे दूं, मेरे
मेरे बाप को गुस्सा नहीं आएगा मुमकिन है, लेकिन 1 जनवरी को अगर मैं मेरे अब्बा को हैप्पी न्यू ईयर कहूं तो मेरे अब्बा मुझे माफ नहीं करेंगे, इसलिए कि हैप्पी न्यू ईयर साल की 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को खुशी मनाना इस्लाम में नहीं है। मेरे दोस्तों, साल के खत्म होने पर खुशी मनाने का तो सवाल मुसलमान को पैदा नहीं होता। मनाने दो खुशियां ईसाइयों को, मनाने दो खुशियां यहूदियों को, मनाने दो खुशियां गैर मुस्लिमों को, इसलिए कि दुनिया उनकी जन्नत है। खबर के सवाल से नवाकिफ है वो लोग, हशर के अजाब से नवाकिफ है वो लोग, अल्लाह के हिसाब और किताब से नवाकिफ है वो लोग, जहन्नम के अजाब से नवाकिफ है वो लोग। पुलसरात पर उनका ईमान नहीं है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर उनका ईमान नहीं है, जिना के मसाइल वो नहीं जानते, शराब की हुर्मत को वो नहीं जानते, माँ के मकाम को, बाप के मकाम को वो नहीं जानते। ये इसकी दुनिया उनके लिए जन्नत है, उनको एंजॉय करने दीजिए, लेकिन दुनिया हमारे लिए जन्नत नहीं है, दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। यहाँ मुजरिम की तरह जिंदगी करो, डर के साथ जिंदगी करो, खौफ के साथ जिंदगी करो। हमको खुशियां मनाने के लिए हमारे रब ने जन्नत तैयार कर रखा है, हमको खुशियां मनाने के लिए हमारे रब ने जन्नतुल फिरदौस तैयार कर रखा है, जन्नतुल नईम तैयार कर रखा है, जन्नतुल मावा, जन्नतुल मुअल्ला, जन्नतुल इल्लियीन तैयार कर रखा है। वहां जाएंगे, हमारे किसी अमल पर खुदा सवाल नहीं करेगा, जबकि हम लोग वहां सोना पहनेंगे, अल्लाह सवाल नहीं करेगा, रेशम पहनेंगे, अल्लाह सवाल नहीं करेगा, 4 से ज्यादा शादियां करेंगे, खुदा सवाल नहीं करेगा, बेहिसाब दौलत होगी, ज़कात का सवाल नहीं होगा, बेहिसाब दौलत होगी, सदक़े का सवाल नहीं होगा, बेहिसाब खुशियां मनाएंगे, बल्कि हमारी खुशियां कम रहेंगी, अल्लाह का अता ज्यादा रहेगा। हमारी खुशियां कम रहेंगी, अल्लाह का अता ज्यादा रहेगा। इसलिए हमारी खुशियां वहां है, हमारी जन्नत वहां है। ये जन्नत ईसाइयों की हो सकती है, ये जन्नत यहूदियों की हो सकती है, ये जन्नत गैरों की हो सकती है। उनको मन चाहिए जिंदगी गुजारने की इजाजत है, लेकिन हमको खुदा चाहिए, रसूल चाहिए जिंदगी गुजारना है। इसलिए उस दिन कोई नया कपड़ा नहीं पहनेगा, बोलो इंशाअल्लाह। बच्चा पेशाब कर डाले भी मुजम्मिल साहब बोले बदलो नको, बोल को वो रख लो, रहना नहीं। पहनो कपड़े उस नीयत से न पहनो, खाओ खाना उस नीयत से न खाओ। 1 जनवरी को भी मुसलमान को कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि अगर करना ही है कोई काम 1 जनवरी को तो एक कापी लो, एक कलम लो, बुला लो सामने बीवी को, माँ को बिठा लो, बाप को बिठा लो, अपनी औलाद को बिठा लो। अब हिसाब लिखना शुरू करो। सूरज के हिसाब से साल के 365 दिन होते हैं। कितने दिन? साल के 365 दिन होते हैं। और एक दिन में कितनी नमाजें हैं? 5 नमाजें हैं। जब एक दिन को 5 है तो साल के 360 पर 5 दिन के 1825 नमाजें एक साल की। अता बोलो, एक साल गुजर गया 2014। मैं भूल सकता हूं, तुम भूल सकते हैं, लेकिन खुदा नहीं भूल सकता। खुदा को गवाह किसी को बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी खुदा गवाह बना देते हैं किरामन को। ले बैठ जाओ, यहां साथ रहो, लिखो मेरे बंदे की रातें लिखो, दिन लिखो, पर सेकंड लिखो। अब जान, साल के 1825 नमाजें गुजर चुकी है। बताओ कितने नमाजें आप पढ़े? मुहासबा करो, उस दिन हिसाब करो, किताब करो। साल के पूरा होने पर जैसे अपने माल का हिसाब करते हैं, आमाल का भी हिसाब करो। अच्छा, एक साल के 360 पर 5 दिन, तो हफ्ते कितने आते हैं? 50 पर 2। तो अब्बा जान, मैं देखा कि आपकी जिंदगी के कोई इतवार दाढ़ी मुंडाए बगैर नहीं गुजरा। 50 पर 2 मर्तबा आपने अपने चेहरे पर वस्तारा लगाया, आपका साल बर्बाद हो गया। फिर जब तुम अपने आमाल का हिसाब लगाओगे, न किसी की मुबारकबाद लेने के काबिल रहोगे, न किसी को मुबारकबाद पेश करने के काबिल रहोगे। अपने आमाल पर इतना रोना आएगा जितना रोना के माँ और बीवी की मैयत पर भी नहीं आएगा। अपने आमाल पर इतना रोना आएगा जितना रोना के अपनी बीवी। अब्बा, कुरान के कितने पारे?
मालूम नहीं रहेंगे 100-150, हमें तो मालूम नहीं बराबर नहीं है 150-150। उठा कर रहा तो ना कुरान कितने पारे? अब्बा जान 30 पारे हैं। दिन को एक पारा बोले 360 पर 5 को 30 में तकसीम करेंगे, कम से कम साल के 12 कुरान खत्म होना था। अब्बा जान बताओ कि आप कितने कुरान खत्म किए? कितने कुरान अब्बा खत्म किए आप? अम्मी कितने कुरान खत्म की? बेगम कितने कुरान खत्म किए? सवाल हम अपने मातहतों को, अपने घर के अपराध को करने की इसलिए हिम्मत नहीं रखते, इसलिए कि उनके तरफ से सवाल आ जाए तो जवाब देने के पास हमारे पास कोई चीज नहीं है जवाब हमारे पास। एक दिन को बेगम, एक दिन को आधा घंटा अगर सीरियल का गुजारते तो साल के 360 पर 5, 180 पर 2 घंटे तेरे आंखों के जिना पर गुजरे। 1 सेकेंड का जिना जहन्नम को पहुंचाने के लिए काफी है। 180 पर 2 घंटे तूने जिना में गुजारे। दिन को एक झूठ रख लो एवरेज, वरना हमारी सुबह भी झूठ से शुरू होती है, रात भी झूठ से शुरू होती है, पूरा दिन खत्म होता है झूठ पर। एवरेज लगा लो, एक दिन को कितना बोले? सिर्फ 21, तो कितने साल के झूठा हुए? 360 पर 5 झूठा हुए। एक दिन को एक मर्तबा एक गैर औरत पर नजर पड़ी, 360 पर 5 नजरों का जवाब देना है। हासिबु क़ब्ला अन तुहासबु, अल्लाह फरमाते हैं मेरे हिसाब का इंतजार न कर, मेरे हिसाब करने से पहले तू हिसाब कर ले, तू हिसाब कर ले। जब तुझे हिसाब की तौफीक मिल जाएगी अपने आमाल पर, दुनिया ही में तो शर्मिंदा हो जाएगा तो तेरा अमल सुधर जाएगा। करना है तो ये काम करो, वो काम न करो जो दुश्मन, वो काम न करो जो ईसाई और यहूदी करते हैं। जगह बजगह मुझे पता चला है अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह, पूरा मोहल्ला गड़बड़ होता है। मैं किसी मोहल्ले की तखसीस नहीं करूंगा, पूरा मोहल्ला गड़बड़ होता है। बाज लोग एमजी रोड को भी जाते हैं, रात के 12 बजे जाते हैं हमारे नौजवान। ये मुंह मसूर की दाल, रमजान आगा तो सुधर जाते हैं, जुम्मा आगा तो सुधर जाते हैं, मौलवी साहब मिल गए तो सुधर जाते हैं। जब ये तीनों चीजें हट जाते हैं तो शैतान भी हमारी शैतानियत को देखकर शर्माता है। ब्रिगेड रोड जाते हैं, एमजी रोड जाते हैं, गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं। क्या जरूरत, क्या रखा है वहां पर? आम दिनों पर ही वहां से गुजरते हुए हमारा ईमान कांप जाता है। आम दिनों पर हमारा ईमान वहां से गुजरते हुए कांप जाता है, तो फिर इन अय्याम पर जाने की क्या जरूरत है? तौबा करो तौबा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज वक्त है मेरे दोस्तों, अमल का पावर तैयार करके रखो, अमल का पावर तैयार करके रखो। अल्लाह के फजल के बाद इस वक्त अगर कोई चीज काम आएगी तो हमारे अमल का पावर काम आएगा। अल्लाह उस मुसलमान से काम लेते हैं जिसके पास अमल का पावर। अभी रास्ते में भी मैंने बहुत सारे बोर्ड्स और कटआउट्स देखे। अभी चंद दिन में